بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ سندھ حکومت نے کچرے سے بجلی بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے، جبکہ کچرے سے بجلی بنانے کی پالیسی منظوری کے لیے سندھ کابینہ کو بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور کچرے سے بجلی بنانے والی کمپنیاں 35 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ لگا سکیں گی۔ سندھ حکومت نے کچرے سے بجلی بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ کچرے سے بجلی بنانے کی پالیسی منظوری کے لیے سندھ کابینہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کچرے سے بجلی بنانے والی کمپنیاں 35 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ لگا سکیں گی۔ اور سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور وزیر توانائی امتیاز شیخ کے درمیان ہونے والی زیر صدارت اجلاس میں کچرے سے بجلی بنانے کے منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ امتیاز شیخ کہتے ہیں کچرے سے بننے والی بجلی کے منصوبوں کو جلد سندھ کے دیگر شہروں تک توسیع دی جائے گی۔ کچرے سے بجلی بنانے والی کمپنیوں سے کوئی نیا ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور وزیر توانائی امتیاز شیخ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کچرے سے بجلی بنانے کے منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ امتیاز شیخ کہتے ہیں کہ کچرے سے بننے والی بجلی کے منصوبوں کو جلد سندھ کے دیگر شہروں تک توسیع دی جائے گی۔ کچرے سے بجلی بنانے والی کمپنیوں سے کوئی نیا ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اور سندھ ہائی کورٹ میں چڑیا گھر میں موجود ریچھ رانوں کو نئے پنجرے میں منتقل کرنے سے متعلق سماعت ہوئی۔ اس میں کے ایم سی اور چڑیا گھر انتظامیہ کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ منصوبے کی مکمل تکمیل کے لیے وقت درکار ہے، انتظامیہ کا موقف۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تصاویر کے ساتھ پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ سماعت 10 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں چڑیا گھر میں موجود ریچھ رانوں کو نئے پنجرے میں منتقل کرنے سے متعلق سماعت ہوئی۔ کے ایم سی اور چڑیا گھر انتظامیہ کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ منصوبے کی مکمل تکمیل کے لیے وقت درکار ہے، انتظامیہ کا موقف۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تصاویر کے ساتھ پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت 10 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور کراچی سے تجاوزات کے ختم کرنے کا مشن جاری ہے۔ اس سلسلے میں گجر نالے پر 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، جبکہ کمرشل بلڈنگ کو مسمار کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اورنگی نالے پر بھی 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اورنگی نالے کی زمین پر قائم کمرشل تعمیرات مسمار کی جا رہی ہیں۔ کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کا مشن گجر نالے پر 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ کمرشل بلڈنگ کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اورنگی نالے پر بھی 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ اورنگی نالے کی زمین پر قائم کمرشل تعمیرات مسمار کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کمیشن کے حوالے سے، جہاں پر شہر کراچی میں مختلف مقامات پر تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، ایسے میں گجر نالے پر 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ کمرشل بلڈنگ کو مسمار کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اورنگی نالے پر بھی 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اورنگی نالے کی زمین پر قائم کمرشل تعمیرات بھی مسمار کی جا رہی ہیں، اور یہ تعمیرات جب ہوئیں تو اس سلسلے میں کہا گیا کہ ان تعمیرات کو فوری طور پہ ختم کیا جائے تاکہ نالوں کا پانی سڑکوں پر نہ آ سکے۔ اس سلسلے میں ہونے والی تجاوزات کو ختم کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے، جبکہ کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کا مشن جاری ہے۔ اس میں شہر کراچی میں مختلف مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ گجر نالے پر 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، جن میں کمرشل بلڈنگ کو بھی مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اورنگی نالے پر بھی 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اورنگی نالے کی زمین پر قائم کمرشل تعمیرات بھی مسمار کی جا رہی ہیں، جبکہ گجر نالے پر مختلف مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے، جہاں کہیں کہیں کے ایم سی اور انتظامیہ کو مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا، جبکہ گجر نالے پر 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ کمرشل بلڈنگ کو مسمار کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور اورنگی نالے پر بھی 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اورنگی نالے کی زمین پر قائم کمرشل تعمیرات کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں تجاوزات کے خاتمے کا مشن جاری ہے، جس میں شہر کراچی میں مختلف مقامات پر اس وقت تجاوزات۔ اس پر مزید بات ہم کریں گے اینٹی انکروچمنٹ سیل بشیر صدیقی صاحب سے۔ بشیر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ گجر نالے پر جو آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، گجر نالے پہ جو آپریشن ہے وہ ہم نے 5 کلومیٹر کا رقبہ جو ہے وہ آج سے 1-2 دن پہلے ہی جو ہے
वागुजार करा लिया था। आज तकरीबन कल और आज 2 दिन मिला के आज हमने 2 किलोमीटर का रकबा और वागुजार करा लिया है और उन पे से तजावुजात का खात्मा किया है। असल में जो सूरत रही कि इस दफा हमने कल से 2 दिन से जो है वो 3 टीमें बना दी हैं, ऑपरेशन को तेज कर दिया है और इस ऑपरेशन के अंदर अगर आप देखेंगे भारी मशीनरी जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मशीनरी में भी इजाफा किया है, अफरादी कुव्वत में भी इजाफा किया है और तमाम यानी कि सिर्फ गुजर नाले पे नहीं, औरंगी नाले पे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही किया है कि वहां पर भी 3 टीमें हमने कर दी हैं। वहां पर भी पाक कॉलोनी, चमन सलीमा, वहीदाबाद, वहां पर भी हम एंक्रोचमेंट को रिमूव कर रहे हैं जो नालों पे मौजूद है। अच्छा बशीर साहब, इन जगहों पे जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ रहा है? देखिए शुरू में कुछ लोगों ने यहाँ पर भी, जैसे हमने महमूदाबाद में जब ऑपरेशन किया था तो वहां पर भी कुछ लोगों ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में अवेयरनेस आ गई है महमूदाबाद नाले के बाद कि असल में होना क्या जा रहा है। सबको पता है कि पिछले साल कराची जो है वो इन बारिशों में की वजह से डूब गया था क्योंकि नालों पे तजावुजात थी। इस वजह से कराची में जो है बहुत बुरी सूरत हाल हुई थी, सैकड़ों लोग उसमें हलाक हुए थे और करोड़ों अरबों रुपए का लोगों को नुकसान हुआ था। ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को हुआ था जो कि नालों के करीब अब रिहाइश पजीर थे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम नालों से तजावुज का खात्मा किया जाए तो अब लोगों में अवेयरनेस आ गई, लोगों को पता चल गया। अब अपनी मदद आपके तहत बहुत सारी जगहों पे हमारे साथ वो खुद कॉपरेट कर रहे हैं और अब मज़ामत का सामना नहीं है। अच्छा, चेक तकसीम करने का भी आपने सिलसिला जारी रखा था, तो क्या लोग मुतमईन हैं? देखिए ऐसा जैसा है कि जो चेक है उसमें बीच में एरर आया था कि चेक जो है रोजाना हमारे पास जो है वो 100, 150, 200 आ रहे थे। तो 1-2 दिन जो है वो 30 और 40 के करीब आए जिससे मैं जो है लोगों पे वो हम चेक नहीं पहुंचा सके। लेकिन अब अचानक वो एरर खत्म हुआ है और अब अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 500, 600 चेक आ रहे हैं, लोगों में तकसीम हो रहे हैं। और 2 मकामात रखे हैं। औरंगी नाले पर हमने जो डीएमसी का ऑफिसर रेस्ट का वहां पर एक मकाम रखा है जहां पर लोगों को चेक दिए जा रहे हैं और बिल्कुल दूसरा गुजर नाले पे जो हमने तैमूरिया लाइब्रेरी नॉर्थ नाजाबाद में जहां पर ये तमाम चेक तकसीम की जा रहे हैं और लोगों को फोन करके उनके, क्योंकि हमने पहले आईडी नंबर भी दी हुई है और लोगों के मोबाइल नंबर भी हमारे पास है, उनको बता दिया जाता है, वो आते हैं और अपना चेक ले जाते हैं। अच्छा, क्या औरंगी नाले पर जो लोग रिहाइश पजीर थे क्या उनमें भी तमाम में तकसीम कर दिए गए चेक? देखिए आज औरंगी नाले पे तकरीबन 100 के करीब चेक तकसीम किए और कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 100 से 150 और चेक तकसीम हो जाए कल। अच्छा, कुछ लीज मकानात के सिलसिले में भी कहा जा रहा था कि लीज मकानात थे, पानी बिजली गैस सब मौजूद था वहां पे और उन्हें भी मसमार किया जा रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने घरों का मुतालबा किया था कि घर के बदले घर दिया जाए, तो कुछ इस तरह की डिमांड भी सामने आई है? देखिए असल में लोगों को, आम आवाम को पता है सब और तमाम पूरी कराची, पूरे पाकिस्तान की आवाम को इसका पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया कि ये तजावुजात हैं, इस पे जो लीज अगर दी गई है तो वो गैर कानूनी लीजें हैं। क्योंकि ये नहीं कि ये नाला जो है ये इससे पहले, आज से पहले 200 फुट चौड़ा नाला होता था और तकरीबन 100 फीट खुला होता था। जब ये बाद में इस पे जो लीजें दी गई, कच्ची आबादी अनाउंस की गई, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अब CP9 के अंदर बाकायदा तौर पर इसको मेंशन किया है कि तमाम नालों के ऊपर से हर किस्म की तजावुजात का खात्मा किया जाए और उस पर जितनी भी लीजें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। तो उस हवाले से आम पब्लिक को पता है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 30% से ज्यादा जिसका भी मकान जा रहा है उसको 2 साल कर रहे हैं, यानी कि 15,000 रुपए मंथ के हिसाब से 2 साल का उसको किराया भी दिया जा रहा है। सही, बहुत शुक्रिया डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं कि जिले मलीर और पुलिस इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है जिसमें मुबैना रसूल बख्श गोड के करीब सरकारी अराजी पर बनाए गए गैर कानूनी मकानात को मसमार किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की 35 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई है। जिले मलीर इंतजामिया और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई मुबैना रसूल बख्श गोड के करीब सरकारी अराजी पर बनाए गए गैर कानूनी मकानात मसमार कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की 35 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सदरुद्दीन शेख से। सदरुद्दीन शेख, आगाह कीजिएगा, इस गोड पर जो अराजी बनाई गई थी मकानात मसमार कर दिए गए?
डिप्टी कमिश्नर मलिर के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम मंशाद शाहनी और मुख्तियार बिन कासिम फरहान जतोई ने बिन कासिम के इलाके रसूलबख्श गोड के करीब वाक़ सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया गया था उस पर प्लाटिंग करके गरीब और सादा लोगों को प्लाट बनाकर बेचा जा रहा था, उसकी जो पक्के कच्चे जो दीवारें थे उसको मसमार किया गया। और मुख्तियार बिन कासिम और असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम का ये दावा है कि हमने करोड़ों रुपए की मालियत की जो सरकारी जमीन थी वो वागुजार करवाई है और कहीं पे भी हम सरकारी जमीन पर कब्जा करने नहीं देंगे। जो भी जाली सोसाइटी और जाली स्कीम है उनको मसमार किया जाएगा। उन्होंने आज मीडिया को बताया कि तमाम जो जाली सोसाइटी है वहां पर लोग प्लाट ना लें और जिसको भी जहां पे भी प्लाट लेने हैं तो सोसाइटी के बिल्कुल वो डीसी ऑफिस से वो तस्दीक करवाएं कि वाकई ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है, कानूनी है या गैर कानूनी है, और लोग अपना जो गचा बचा जो पैसा है वो जाया ना करें और तस्दीक के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या मुख्तियार ऑफिस रुजू करें और लोग जो है लैंड माफिया की निशानदेही करें और लैंड माफिया के लिए हमें बताएं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदरुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद थे। जिले मलीर इंतजामिया और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, मुबैना रसूल बख्श गोड के करीब सरकारी अराजी पर बनाए गए गैर कानूनी मकानात मसमार कर दिए गए। और कराची में कायदाबाद फ्लाईओवर के ज्वाइंट्स की मुरम्मत का काम सुस्तरवी का शिकार है। इस वजह से मुसाफिरों के लिए बाइस अजाब बन चुका है। कराची के कायदाबाद ब्रिज के तबाह हाल 9 ज्वाइंट्स जो कि मुरम्मत का काम जारी है, जदीद मशीनरी के बजाय सिर्फ रिवायती तरीके से करवाया जा रहा है। सुस्त रवि से होने वाले इस काम की वजह से कायदाबाद ब्रिज पर शाम के औकात में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहता है, जिसके नतीजे में मुसाफिर हजरात सख्त अजियत का शिकार हैं। इलाका मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर KMC कराची और DMC मलिर से मुतालबा किया है कि कायदाबाद ब्रिज के ज्वाइंट्स की मुरम्मत का काम को बर्क रफ्तारी और पायदारी से करवाने के अहकाम जारी करें, ताकि ब्रिज पर किए जाने वाले तरक्याती कामों की वजह से ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों को अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। और यहां खबर दें आपको कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स की अदायगी पर रियायत हासिल करने की मुद्दत में तौसी कर दी है। इस सिलसिले में सार्फिन अब 31 दिसंबर 2021 तक वाजिबात की यकमुश्त अदायगी पर 25% रियायत हासिल कर सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है कि टैक्स अदायगी की तारीख में तौसी का फैसला KMC की रिकवरी में बेहतरी लाने के लिए किया गया है। म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स के बिलों में 25% रियायत KMC काउंसिल की करारदाद 148 मरखा 29 मार्च 2018 के तहत दी गई है। बल्दिया उज़्मा कराची ने शहरों से दरख्वास्त की है कि वो इस मौके से फायदा उठाएं और अपने बिल की यकमुश्त अदायगी पर 25% रियायत हासिल करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स की अदायगी पर रियायत हासिल करने की मुद्दत में तौसी कर दी है। सार्फिन अब 31 दिसंबर 2021 तक वाजिबात की यकमुश्त अदायगी पर 25% रियायत हासिल कर सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है कि टैक्स अदायगी की तारीख में तौसी का फैसला KMC की रिकवरी में बेहतरी लाने के लिए किया गया है। म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स के बिलों में 25% रियायत KMC काउंसिल की करारदाद 148 मौका 29 मार्च 2018 के तहत दी गई है। बल्दिया उज़्मा कराची ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो इस मौके से फायदा उठाएं और अपने बिलों की यकमुश्त अदायगी पर 25% रियायत हासिल करें। और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने कहा है कि इस्लाम दुनिया का बेमिसाल मजहब है जो ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। ख़वातीन का मुल्क के इदारों को चलाने में अहम किरदार रहा है। ख़वातीन हर शोबा ज़िंदगी में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर सैयद जवाद हुसैन शाह के हमरा आसू गोट मैटरनिटी होम का तफसीली दौरा किया और मरीजों की अयादत की। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने कहा कि इस्लाम दुनिया का बेमिसाल मजहब है जो ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। ख़वातीन का मुल्क के इदारों को चलाने में अहम किरदार है। ख़वातीन हर शोबा ज़िंदगी में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। हमारी जो
परवरिश करने वाली हैं। हम आज जिस स्टेज के ऊपर है, मेरी माँ है, इसी तरीके से बहनें हैं, इन सब की जो है माशरे में बड़ी अहम जिम्मेदारी है। और अब तो आप देख रहे हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट फील्ड हैं वहाँ पे ख़वातीन का एक अहम किरदार सिर्फ घर तक महदूद नहीं है। जैसे कि आज हम जिस डिस्पेंसरी पे खड़े हैं, इसको हमारी तकरीबन तमाम ही जो है फीमेल स्टाफ जो है वो चला रही है। हमारी दोनों डॉक्टर साहिबा जो हैं और हमारे जो नर्सेज और जो बाकी हमारा स्टाफ है बड़े अच्छे और बड़े एहसन तरीके से चला रहे हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि ख़वातीन जो है वो प्रैक्टिकली जो हमारी फील्ड्स हैं डिफरेंट, चाहे वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और हमारी जो है ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से इसमें मज़ीद बेहतरी लाएँ। तो वुमेंस डे के हवाले से जो है मैं विश करूँगा कि आप जो है मज़ीद तरक्की लाएँ और हमारे इस इदारे को, हमारे इस मुल्क को जो है और ज़्यादा कामयाबियाँ नसीब हों। हमारे एम पी साहब डिमांड्स की जो हमने मसला था, अभी इन्होंने गुजारिश की है, पंखों का मसला है, जनरेटर है तो हमने जो बनवाया है थोड़ा, तो उसमें गैस का मसला है, गैस नहीं रहा। तो अभी उनको मैं दूसरा एक जनरेटर लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा आप एप्लीकेशन दे दें और आपको मैं पेट्रोल भी इशू करता हूँ दैन एंड देयर। ठीक है, आपके जो लाइट्स थे वो कह रहे हैं बल्ब नहीं है, कोई ग्राउंड की पंप ख़राब है और कुछ इशूज़ हैं, पानी का मसला है, पानी हमारे पास पीने के लिए डिस्पेंसर्स नहीं है, कूलर्स नहीं है। तो आज मैंने जो भी इन्होंने डिमांड्स की हैं, 7 डिमांड्स इन्होंने की, साथ ही आज मैंने पूरी कर दी। और सिंध हुकूमत केएमसी और डीएमसी के बुलंदोबांग दावे धरे के धरे रह गए। शहर कायद में सरगर्दगी की मुहिम नाकाम साबित हुई। इस सिलसिले में शहर को आवारा कुत्तों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। टोलियों की शक्ल में कुत्ते अवाम के लिए खौफ की अलामत बन गए। गलियों और पार्कों में कुत्तों की भरमार से अवाम ने घरों से निकलना छोड़ दिया है। सिंध हुकूमत केएमसी और डीएमसी के बुलंदोबांग दावे धरे के धरे रह गए। शहर कायद में सरगर्दगी की मुहिम नाकाम। शहर को आवारा कुत्तों के रहम करम पर छोड़ दिया गया। टोलियों की शक्ल में कुत्ते अवाम के लिए खौफ की अलामत बन गए। गलियों और पार्कों में कुत्तों की भरमार से अवाम ने घरों से निकलना छोड़ दिया है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से। नुमान गुल, आगाह कीजिएगा इस वक्त शहर की सूरत हाल के हवाले से। कुल शहर कायद में जो है वो कुत्तों की भरमार है। हर तरफ जो अगर आप चले जाएं रात के वक्त आपको जो है वो कुत्ते ही नजर आएंगे। रास्ते से गुजरे तो खौफ की अलामत साबित होते हैं ये, और पार्कों में अगर चले जाएं रात के वक्त तो आपको ये कुत्ते ही नजर आएंगे। इसके अलावा सिंध हुकूमत के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। इसके अलावा जो जिला इंतजामिया है उनकी तरफ से भी बारहा मरतबा ये कहा गया कि कुत्ता मार मुहिम का आगाज कर रहे हैं, लेकिन आगाज होता हुआ दिखाई ना दिया। और जो है ये कुत्तों की जो आबादी है इस वक्त जो है वो काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इलाका मकीन जितने भी लोग शहर कायद में रहते हैं वो इन कुत्तों की वजह से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नुमान गुल, आपने तफसीलात से आगाह किया। बल्दियाती खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। बल्दियाती खबरों में एक बार फिर खुशामदीद और जिक्र करेंगे जिला शर्की का, जहां पर दावे अधूरे नजर आते हैं और तरक्याती कामों ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गुलशन इकबाल अस्करी पार्क के करीब सीवरेज लाइन की तंसीब ने मरकजी शाहरा को खंडर बना दिया है। असरकारी न होने से मरकजी शाहरा खस्ता हाली का शिकार है। शाहरा पर लगे मलबे के ढेर से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी है। जिला शर्की में अधूरे तरक्याती कामों ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। गुलशन इकबाल अस्करी पार्क के करीब सीवरेज लाइन की तंसीब ने मरकजी शाहरा को खंडर बना दिया। असरकारी ना होने से मरकजी शाहरा खस्ता हाली का शिकार हो गई। शाहरा पर लगे मलबे के ढेर से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, आगाह कीजिएगा, काम अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा? जी हाँ, बिल्कुल यूँ तो शहर की जो तमाम सड़कों की अगर देखें तो बुरा हाल नज़र आता है। ट्रैफिक की रवानी भी वहाँ आमतौर पर जो होनी चाहिए वो नहीं नज़र आती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इस वक्त सिविक सेंटर की यह शाहरा है, सिविक सेंटर से जेल रोड जाने वाली यह सड़क है। इस सड़क के बीच में जो लाइन डाली गई है, लाइन के लिए खुदाई तो कर दी गई है, लेकिन अब इसको इस तरह छोड़ दिया गया है कि किसी की भी जान के लिए ख़तरा बन सकता है। इसकी सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ अंधेरा है, गाड़ियों की लाइट से भी ये सड़क नज़र नहीं आ सकती, ये गड़ा नज़र नहीं आ सकता।
जो कि धंस के अब बिल्कुल ऐसा मौत का कुआं सा लगता है कि किसी की भी जान जो है ले सकता है, ट्रैफिक हादसे का बायस बन सकता है। शायद यही इंतज़ार है इंतज़ामिया को, हुकूमत के कोई हादसा पेश आए तो यहाँ तवज्जो दी जाए। इससे पहले यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी जाए कि अब यह पत्थर जो रखा गया है यकीनन इस अंधेरे के अंदर किसी गाड़ी आने वाले को नज़र नहीं आएगा। इस तरह की सूरत हाल, ये बिल्कुल जो सड़क का बुरा हाल हो चुका है, इसको बनाने के लिए किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही है। आगे बजरी तो डाल दी गई है, लेकिन बजरी भी वो पहाड़ नुमा टीला बनी हुई है जो कि हादसे का बायस बन सकती है अंधेरे की वजह से। इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत, लेकिन नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपस के ही चपकलश से जो है उनको निजात नहीं मिल पा रही है। उस तरफ तवज्जो क्या अवाम के मसाइल की तरफ देंगे? अवाम का मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं और अवाम यह है कि बिल्कुल मायूस नज़र आती है। बात की जाती है कि अवाम को जो है मसाइल के हल करने के लिए वफाक हो या सिंध हो, सब यही बात कहते हैं कि अवाम के मसाइल के हल के लिए कोशा है, लेकिन कोशा किस तरह है कि मसाइल हल हो ही नहीं रहे हैं, बल्कि मसाइलों में इजाफा हो रहा है। जैसे कि ये सड़क जो है नज़र आ रही है, सड़क जिस तरह टूटी हुई है, यकीनन इस अंधेरे में जबकि लाइट का भी इंतज़ाम यहाँ होना चाहिए, लाइट का भी इंतज़ाम नहीं है। अंधेरे में शहरी यहाँ से गुजरते हैं, मोटरसाइकिल सवार कहा जाता है, अक्सर यहाँ पर गिर पड़ते हैं, ज़ख्मी होते हैं और फिर जो है उनको उठाया यहाँ पर जाता है, फिर दोबारा जो है वो अपना सफ़र जो है बांधते हैं। लेकिन बात यह है शहर के अंदर इन सड़कों का जो बुरा हाल है उसको कौन सुधारेगा, इन सड़कों की हालत को कौन सही करेगा और आवाम जो परेशानी और मुश्किल का शिकार हैं उन परेशानी से कौन निकालेगा? क्योंकि हुकूमत हो या दीगर अपोजिशन जमातें हों, वो सिर्फ आपस की चपकलश, आपस की सियासी कशमकश में लगी हुई हैं। आवाम के मसाइल जूं के जूं नज़र आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, आपने तफसीलात से आगाह किया। और जिले वस्ती से आपको खबर देंगे जहां पर लीकेज के बायस शाहराहों पर बहते पानी से सड़कें तबाह होने लगी हैं, जबकि न्यू कराची बाबा मोड़ पर पानी के रसाव से सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है। अरसे दराज से बहते साफ पानी के जिया पर शहरी वाटर बोर्ड हुकाम से नाला है। कहते हैं इलाका मकीन पीने के साफ पानी को तरसते हैं। इलाके में लीक लाइनों से जगह जगह साफ पानी बह रहा है और साफ पानी का जिया रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली के सबब जिला सेंट्रल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। जिला इंतजामिया के मुजरिमाना गफलत के बाइस बाबा मोड़ पर पानी की सप्लाई लाइन फटने से शाहरा जगह जगह से खस्ता हाली का शिकार होने लगी। शाहरा पर मीठा पानी जाया होने से इलाका मकीन मुसाफिर दोनों परेशानियों का सामना करने लगे। शहरी कहते हैं कि मीठा पानी नलों में आने के बजाय शाहराहों पर जमा है, कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता। कल दोपहर को 3:30 बजे करीब मेरी वाइफ और मेरे बच्चे रिक्शा में जा रहे थे। यहाँ ही ये रिक्शा इसी गड्ढे की वजह से गिरा, इनके चोटें आई हैं। मेरे बच्चे का पूरा हाथ में लाट लगी है, इसकी पूरा इसका टाँके लगे हैं। मेरी बेटी के पूरे पसली में चोटें लगी हैं। ये हाल है इस रोडों का। शर्म नहीं आ रही है, सिर्फ लड़ रहे हैं अपनी सियासत पे। आवाम के लिए कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा है। कोई यहाँ का कौंसल जो सब मर गए, कोई ना वजीर आला ना सेन ना कोई भी, बस अपनी उन्होंने अपनी लगा रखी है और कुछ नहीं है। खुदा का खौफ नहीं है इनको, अल्लाह का खौफ नहीं, सिर्फ अपनी सियासत पे लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। इनको अल्लाह को जवाब नहीं देना मर के, सिर्फ उनको अपना पेट भरना है। किसी का आवाम का कोई एहसास नहीं है। प्लीज खुदारा रहम करें, कुछ तो तरस खा लें लोगों पर। तोड़ने वाले भी यही लोग हैं सर जी। ये बिल्कुल सही था, ये खोद कर गए इसको और उसके बाद है ना बस ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। पानी आता है, पानी रोड पे बहता रहता है। पीला स्कूल है, आगे स्टाफ अगला स्टाफ, वहाँ तक पानी बेघर जा रहा होता है। आज तक यहाँ बह रहा है, लोग मैयत ले जाते हुए पानी गटर में से ले जाते हैं। ये हमारी जिंदगी है, ये इस्लामी कंट्री है, ये इस्लामी कंट्री है। हम मुसलमान हैं, अपनी मैयतों को गटर के पानी में से ले जा रहे हैं। इन मुल्क में इन्होंने वो हाल कर दिया है, कोई गली कोई कूचा ऐसा नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, 2-2 फीट पानी में से निकल के गुजरते हैं। मस्जिदों के गेटों के आगे पानी खड़ा है। कराची की इंतजामिया की नाअहली के बाइस बेशुमार शाहराएं टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सिंध हुकूमत भी महज अपने दावों तक महदूद है। शहर कायद की शाहराएं ठीक कब और कैसे होंगी किसी को मालूम नहीं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
اور خبر دیں گے آپ کو ضلع وسطی سے ہی، جہاں پر کچرے کے ڈھیر سے معاملات زندگی متاثر ہونے لگے ہیں، جبکہ نیو کراچی خواجہ اجمیر نگری کی مرکزی شاہراہ کچرے سے بھر چکی ہے اور مکینوں کا یہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہے۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مسافر کہتے ہیں شاہراہیں کچرے سے بھری ہوئی ہیں، کچرا گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال پر کوئی پرسان حال نہیں۔ سندھ حکومت، بلدیہ عظمیٰ اور ضلعی انتظامیہ نے کراچی کی شاہراہوں کو تباہ کر دیا۔ ضلع وسطی کے علاقے اجمیر نگری کی مرکزی شاہراہ پر کچرے کے انبار انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت پیش کرنے لگیں، جبکہ شاہراہ پر کچرے کے سبب ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ شاہراہیں سیوریج سے بھری ہیں، جبکہ کچرا گھروں تک پہنچ چکا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کافی ٹائم سے شروع سے ہی ایسے تقریباً، اور یہ بہت پریشانی ہوتی ہے، بھرا ہوا ہے کچرا، روڈ بنا ہوا نہیں ہے۔ چلو روڈ نہ بناؤ، کم سے کم کچرا تو نہ ہو۔ نہیں، اگر اٹھاتی ہوتی تو یہ حال تو نہ ہوتا۔ انتظامیہ بس زیرو ہے ابھی، اور کیا کہیں گے۔ حکومت آنے سے پہلے تو بہت دعوے ہوتے ہیں، ابھی دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ یہ ہے کہ جو باتیں کی جائیں وہ پوری بھی ہوں تو صحیح ہے، خالی دعوے کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ گاڑی تک نہیں آ سکتی ہے، انتظامیہ کیا کرے؟ گاڑی آنے کا راستہ تک نہیں چھوڑا ہے، روڈ اتنے ٹوٹ پھوٹ گئے، رکشہ مشکل سے آتا ہے بھائی۔ کچرے کی یہی صورتحال ہے، تو ہم حکومت وقت سے اور یہ جو علاقے کے اجمیر نگری ہیں، یہاں کے جو بھی عمراء ہیں، ان سے گزارش یہی ہے کہ جلد از جلد عوام کو اس پریشانی سے نکالا جائے۔ تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ تاکہ آنے جانے میں بالخصوص عوام الناس کو بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو جلد از جلد یہ پریشانی اور یہ مسائل حل کیے جائیں۔ یہ کافی عرصے سے ہے، تقریباً ہمیں تو سال ہو گئے ہے، ہم ایسا ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے تو ابھی تک فی الحال کوئی ہماری نظر میں نہیں آیا کہ کوئی انتظامیہ آئی ہو اور یہاں آ کے دیکھا ہو، انتظامات حل کیے ہوں۔ تقریباً یہی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بس گزارش تو یہی کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ مسائل ختم کر دیے جائیں۔ شہر قائد کے مخصوص مقامات کو چھوڑ کر ہر جگہ کچرے کے انبار اور سیوریج کا پانی موجود ہے، جبکہ دوسری جانب عوام حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جلد شہر سے نکاسی آب اور کچرے کی صفائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام سکون کا سانس لے سکیں۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ احمد الدین، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور ضلع وسطی میں بلدیاتی اداروں کی عدم توجہی کے باعث نیو کراچی سیکٹر 5M میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ کہیں مین شاہراہوں پر کچرے کے ڈھیر ہیں تو کہیں سیوریج کے گندے پانی نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ نیو کراچی کے مکینوں کی زندگی سیوریج کے گندے پانی اور کچرے کے ڈھیر میں گزرنے لگی۔ ضلع وسطی میں بلدیاتی اداروں کی عدم توجہی یا واٹر بورڈ انتظامیہ کی غفلت، نیو کراچی سیکٹر 5M میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ کہیں مین شاہراہوں پر کچرے کے انبار تو کہیں سیوریج کے گندے پانی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ تقریباً 2 سال سے یہ بالکل اسی پوزیشن کے اندر ہے، اور یہ گٹر کا سیوریج کا پانی، پوری سیوریج لائن یہاں پہ ڈیمیج ہوئی ہے۔ یہاں اسکول ہوتے ہیں، صبح اگر آپ مارننگ میں آئیں تو اتنا رش ہوتا ہے بچوں کا، اور اکثر پیرنٹ یا بچے یہ کراس کرتے ہیں، فلیٹوں سے آتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بری اور افسوس کی بات ہے۔ اب کائنڈلی اس کو دیکھیں، اور کئی بار کمپلین کی ہے اس کی کہ اس کو روڈ بنا دیں، لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کے چینل سے کہ پلیز آپ اس کو دیکھیں اور اس کو روڈ کو بنوا دیں۔ پوری پٹی اسکول کی ہے، لیکن اسکول کی چھٹی میں آپ آئیں تو یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ روڈ بھی خراب، نالوں میں بھی کچرا بھرا ہوا ہے۔ یہ تو اتفاق ہے اس ٹائم تھوڑا پانی سوکھا ہے، ورنہ یہاں تو پانی ہر وقت چلتا رہتا ہے، پیدل چلنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ کچرا روزانہ کی بنیاد پر نہ اٹھنے کی وجہ سے ایک شاہراہ بند ہو کر رہ گئی ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں اسکول کے معصوم بچے یہاں سے گزرتے ہیں، گندگی میں گر پڑتے ہیں۔ انتظامیہ صرف سوشل میڈیا پر تصویروں میں نظر آتی ہے، عملی اقدامات کچھ نہیں ہوتے۔ اس کی گندگی صاف نہیں ہو رہی۔ ہمارے جو بچے اسکول کے نہیں آتے ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے، سب سے زیادہ یہی مسئلہ ہے۔ اگر یہ صفائی کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی ان کی، بہت زیادہ۔ پیرنٹس کو بھی ہوتی ہے، کس طرح سے آتے ہیں، بار بار پانی میں گر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں واپس یونیفارم چینج کرتے ہیں۔ شہریوں نے ضلع وسطی کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا را بند کمروں سے باہر نکل کر صفائی ستھرائی کو یقینی بنائے تاکہ مکین سکون کی زندگی گزار سکیں۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ احمد الدین، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور حالیہ بارشوں میں پانی میں ڈوب کر کراچی توجہ حاصل کرنے والا یوسف گوڈ آج بھی بلدیاتی سہولیات سے محروم ہے۔ سیوریج سسٹم کی تباہی نے یوسف گوڈ کی حالت مزید ابتر کر دی ہے۔ گلی محلوں میں سیوریج کا پانی جمع ہونے سے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گنجان آباد والے علاقے کے مکین حکومتی دعووں اور وعدوں کی تکمیل کی راہ تکنے پر مجبور ہیں۔
कराची के इलाके यूसुफ गोट के मकीन हुकूमत और बल्दियाती इदारों की गैर संजीदगी के बायस बुनियादी बल्दियाती सहूलियात से महरूम हो गए। हालिया बारिशों में डूबने वाले यूसुफ गोट की हालत ताहाल बेहतर न हो सकी। गुंजानाबाद यूसुफ गोट में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम होने से गली महलों में सेवरेज का पानी जमा होना मामूल बन गया। हुक्मरानों और जिला इंतजामिया की जानिब से दावे और वादे बहुत किए गए, लेकिन अमली इकदाम होता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता। यूसुफ गोट के मकीन हुकूमती दावों और वादों की तकमील की राह तकने पर मजबूर हैं। कहते हैं हुक्मरान बुलंद-ओ-बांग दावे और वादे करके चले गए। अवामी नुमाइंदों ने भी खूब दौरे किए और तस्वीर बनवाई, फिर वापस कोई नहीं आया। वो भी आता अपना झंडा गाड़ता और चला जाता। ये लेन डलती है, ये छोटी छोटी सी लाइनें डाली हुई हैं। इसका ये है कि अपना 2 साल से प्रॉब्लम है। 2 साल हो गए तकरीबन इसको करते हुए। आपके सामने देखें पोजीशन कैसी है, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए जगह को, और इसी पोजीशन में सारे बच्चे मतलब तकरीबन बच्चे वगैरह सब बीमार हो जाते हैं। मच्छर इतने कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे मतलब बच्चों को लेके भागना पड़ रहा होता है। यहाँ तक मतलब आप देखेंगे कोई अगर इमरजेंसी हो जाए ना कोई, तो एम्बुलेंस तक के अंदर नहीं जा सकती यहाँ पर। शहरी कहते हैं हुक्मरान अवामी नुमाइंदों ने बुलंद-ओ-बांग दावे करके खूब हमदर्दी समेटी, लेकिन अमली इकदाम कुछ न किया। भाई यहाँ तो बता रहे हैं ना, इन्होंने 2-2.5 साल हो गए, मतलब कहने का यही हाल है। जब भी यहाँ तो जो भी आता है ना अपने नंबर बढ़ा के निकल जाता है, दोबारा नहीं आता इधर, देखने को भी नहीं आते हैं। भाई मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। यहाँ की कंडीशन इतनी है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है कि मरीज़ को भी लेके जाना है ना तो एम्बुलेंस काफ़ी दूर आती है। कोने वाले घर में मेरे इंतकाल हुआ, उनकी जिस दिन लेके जा रहे थे ना सर्च खाने में, तो उसके लिए भी बेचारों को यहाँ पे खड़ा होना पड़ा सबको। बहुत कंडीशन यहाँ की ख़राब है। यहाँ का कोई जिम्मेदार कोई भी काम कराए यहाँ का ना, तो कम से कम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करा दे। यूसुफ गोट के मकीनों ने सिंध हुकूमत और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इससे पहले मजीद तेज बारिशें हों और हम फिर नई मुश्किल में पड़ जाएं, यहाँ पर तवज्जो दें और सेवरेज के निकासी आपके मसाइल हल करवाएं। और कराची के जिले गरबी का इलाका टंकी स्टॉप का ईदगाह ग्राउंड कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। ग्राउंड में कचरा जमा होने से खेलों की सरगर्मियां भी मांद पड़ गई हैं। जिला गरबी में खेल के मैदान और पार्क तबाही के धाने पर पहुंच गए। जिला गरबी में टैंकी स्टॉप ग्राउंड कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। शहरी कहते हैं ग्राउंड की साल में सिर्फ 2 बार सफाई होती है, इसके बाद इंतजामिया यहाँ नजर नहीं आती। कचरे और गंदगी से बच्चों का क्रिकेट खेलना भी मुश्किल हो गया है। रात के औकात में शादी की तकरीबात का इनेकाद गंदगी में मजीद इजाफा कर रहा है। ग्राउंड है, देख रहे हैं कि ग्राउंड की क्या हालत हुई हुई है। कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बच्चों को खेलने वगैरह में मसला हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं। तकरीबन हर एक दूसरे दिन मसले मसाइल हो रहे हैं। देख रहे हैं क्या हालत हुई हुई है। हर कोने पे आपको कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बहुत तकलीफ हो रही है। एरिया में पूरे तकरीबन जितना ये यहाँ पे एक ही ग्राउंड है इस सेक्टर में, ये बड़ा वाला, इसी में मसला हो रहा है। ये तकरीबन यहाँ पे जैसे ये कोरोना का मसला हुआ था, उसके बाद जो है ना ज़्यादातर लोग यहाँ पे वो टेंट वगैरह शादियों का यहाँ पे ये ग्राउंड इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सामने ये टेबल वगैरह भी लगे हुए हैं ना, तो कचरा इसकी वजह से भी हो रहा है। और जो यहाँ के महल्लेदार हैं वो भी कचरा यहीं पे फेंक रहे हैं। सर देखते हैं, बोला भी है काफ़ी लोगों को, मगर कोई वो एक्शन नहीं ले रहा। तो हमारी यही गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इसके थोड़ा सा तवज्जो दें और इसको मसले को थोड़ा हल करा दें। कितनी दफ़ा साफ करा के तक गए, कुछ अपने ही ऐसे हैं, कुछ फेंकते हैं। अपने समझ जाए तो सीधा रह ग्राउंड हमने लिखवाया था कि यहाँ पर भी चौक पे लिखवाया भी था, एक साफ करा के तक गए। कोई भी नहीं देखता, कोई पार्टी वाले साफ कराते हैं बस, उसके बाद फिर वही मैच वेच होता है, साफ कराते हैं पार्टी वाले। वो भी बेचारे कितनी दफ़ा कराएंगे साफ। कुछ मोहल्ले वालों ने भी साफ करा दिया, उसके बाद ये तो एक अरसा ही हो गया, कोई देखता ही नहीं है। और सफाइयाँ तो करवाते हैं यहाँ वाले, मगर वही बात है कि कचरा फेंके तो कहाँ फेंके, कोई कुंडी नहीं है। महल्ले वाले कचरा भी फेंके तो कहाँ फेंके, जाहिर सी बात है। अब ये कुंडी नजर आती यहीं फेंकते, जबकि ये ग्राउंड है क्रिकेट के लिए, बच्चे खेलते हैं, मगर जाहिर सी बात है ना सफाई का ख्याल है ना किसी चीज़ का। इदारों को ये है कि ख्याल करना चाहिए कि ग्राउंड बनाएं, खेलने के लिए बनाएं, तो उनका ख्याल भी तो रखें ना, देखभाल भी तो करें। शहरियों ने अरबाब इख्तियार और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि ग्राउंड की सफाई रोजाना की बुनियाद पर यकीनी बनाई जाए, ताकि यहाँ रहने वालों को साफ सुथरा माहौल मिल सके। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और कराची के इलाके कोरंगी 6 नंबर में मार्केट के अतराफ में कचरे के ढेर लग गए। जगह जगह कचरे के ढेर से इलाका मकीन अजियत में मुब्तला होने लगे।
शहर कायद का तबाह हाल जिला कोरंगी कचरे से भर गया। ये मनाजिर है कराची के इलाके कोरंगी नंबर 6 के, जहां मार्केट के अतराफ में कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जहां कचरा उठाने के बजाय जला दिया जाता है, जिसके सबब इलाके में मूजी अमराज फूट सकते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि हर कोई कराची के कचरे को साफ करने की बात करता है, लेकिन कचरा साफ नहीं होता। कचरा पड़ा हुआ, कई साल गुजर गए हैं, इस कचरे को जो है पड़े हुए, और कोई भी दुकानदारों का जो है इस कचरे के मुतालिक इतनी फिक्र रहती है कि कोई आए इसको उठाए, कोई उठाने वाला नहीं है। हम हुकूमत से इंतज़ार करते हैं कि इस कचरे को उठाया जाए, इससे बीमारी आलूदगी फैलती है, और मार्केट में जितनी भी कस्टमर आती है वो हमारी माँ बहनें हैं, और वो जो है इस कचरे में से गुजर के मार्केटों में गुजरती है, तो इससे बीमारियाँ फैलती है और ये बड़ी आलूदगी है। हम इंतजार करते हैं हुकूमत से, अल्लाह के वास्ते कराची का सारा कचरा, यही नहीं कराची का सारा कचरा उठाया जाए और अल्लाह इसका आपको अजर अजीम अता फरमाए। लेकिन यहाँ के जो बच्चे जो निकलते हैं स्कूल के, यहाँ से आप खुद सुबह आके खुद देख लोगे कि किस कदर इस तरह, ये तो फिर भी अभी बहुत साफ थोड़ा साफ नज़र आ रहा है, नहीं तो उसके बावजूद आप थोड़ी कुछ दिन आगे पहले भी देखते हो, और अभी एक हफ्ते के बाद भी आप देख लेना इधर कितना कचरा होगा, इस कदर कचरा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यार इंतजामिया आती है यूँ तस्वीरें बना के चली आती है, कुछ उसका कोई फ़ायदा नहीं है कुछ करने का। यहाँ से हम लोग अभी भी, हालांकि मैं भी आया हूँ, मेरी दुकान भी है इधर, ये मेरे सामने दुकान है, अभी मैं आया हूँ और अभी मैंने आके भी देखा, और अभी सुबह पता नहीं कौन से कहाँ से लोग आते हैं, कचरा फेंक के वो चले जाते हैं। इंतजामिया को हालांकि बोल के दरख्वास्त दे के थक जाते हैं, लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। ये गरीब बच्चे, इनका क्या मुस्तकबिल है ये तो देखें आप। ये इन कचरों के अंदर आके अपनी जो है ना लाइफ को जो है ना सेटल करेंगे क्या? ये खुद तो जो है ना ऐवानों में बैठे हुए हैं, ये कोई बात नहीं करता भाई। इनको चाहिए कि ये कराची के मसाइल पे तवज्जो दें। ये कराची से ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन तवज्जो कोई नहीं दे रहा है। जिसको भी अगर कोई है तो आके देखे भाई, ये एयर कंडीशन में बैठ के काम नहीं होते हैं, ये आवाम में खड़े होने से काम होते हैं। कराची के तमाम अजला में कोरंगी की हालत कचरे और सीवरेज की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां शहरी इसी कचरे के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अवाम का मजीद कहना था कि मुतालिका इदारे जल्द कोरंगी नंबर 6 मार्केट के तरफ से कचरे की सफाई को यकीनी बनाएं, ताकि अवाम यहां सुकून का सांस ले सके। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और जिले कोरंगी में वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट बंद करने के फैसले को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। जिले कोरंगी के मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए वाटर हाइड्रेंट की मुंतकली का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। कराची वाटर बोर्ड के 20 मार्च से दाऊद चौरंगी हाइड्रेंट बंद करने के फैसले अवाम ने मुस्तरद कर दिया। लांडी कोरंगी और मुलेका इलाकों के मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए वाटर हाइड्रेंट की मुंतकिली रोकने का मुतालबा कर दिया। मकीनों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर वाटर हाइड्रेंट की मुंतकिली रोकने के मुतालबात तहरीर थे। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में भरपूर नारेबाजी भी की। जिला कोरंगी के मकीनों का कहना था कि वाटर हाइड्रेंट से मकीनों को सहूलियात मैसर थी। वाटर हाइड्रेंट की इलाके से दूर मुंतकिली से आवाम महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारी पहली दरख्वास्त ये है, रिक्वेस्ट ये है कि हमें लाइन के जरिए पानी दिया जाए। अगर वो नहीं दिया जाता तो ये जो टैंकर के जरिए से पानी दिया जाता है, लांडी का एक हैंड पंप है, उसको ये बंद करने जा रहे हैं। लिहाजा हमारी डीसी साहब से और मुल्का इदारे से और तमाम अफसरान से दरख्वास्त है कि खुदारा ऐसा ना किया जाए। हम पर, अवाम पर, मसाजिद पर, मदारस पर रहम किया जाए। पानी जो असल बुनियादी ज़रूरत है हर बंदे की, हर घर की, हर मस्जिद और मदरसे की बुनियादी ज़रूरत है, तो खुदारा इसके लिए ये जो कसीर तादाद में अवाम यहाँ मौजूद हैं, उलमा कराम हैं, बंदे बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, सब मौजूद हैं, ये सारे एक दरख्वास्त और एहतजाज कर रहे हैं कि हमें पानी दिया जाए। ये बंद किया जा रहा है, ऊपर से गर्मियों का मौसम आ रहा है, ऊपर से रमज़ान का महीना आ रहा है, तो भाई ये क्या खेल खेला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। हर हुकूमत का ये जिम्मेदारी है कि पानी, बिजली और गैस ये हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि उसको दिया जाए। हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा, लिहाजा हमारा मुतालबा है कि हाइड्रेंट हरगिज़ बंद न किया जाए और इसको जारी रखा जाए। डीसी कोरंगी से गुजारिश है कि जो हाइड्रेंट्स बंद किया जा रहा है, ये जो है ना इस आवाम का हक है, इनको जो है ना बंद न किया जाए। और जो पानी जिनको मिल रहा है, हमारी गुजारिश है कि उस पानी को बंद न किया जाए। और अगर ये पानी या ये हाइड्रेंट्स बंद किया गया तो ये जितने इलाके भी हैं, इसके जो अवाम है या उलमाए कराम है
یا جو ہے نا مساجد و مدارس والے ہیں وہ جو ہے نا احتجاج کا حق رکھتے ہیں، پھر وہ پرامن احتجاج کریں گے۔ ضلع کورنگی کے مکینوں نے سندھ حکومت اور ایم ڈی واٹر بورڈ سے اپیل کی ہے کہ واٹر ہائیڈرنٹ کی منتقلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے تاکہ عوام سہولیات سے محروم نہ ہو سکے۔ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔